نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی 10 محرم الحرام، اسی مہینے ایک واقعہ پیش آیا جیو نیوز کی طرف سے، آپ کے علم میں ہوگا۔ انہوں نے ایک پروگرام پیش کیا سفر عشق کے نام سے۔ کربلا اس میں دکھایا گیا اور اس میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا انجانے میں، ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جس پر مسلمانوں میں ایک تشویش پھیلی۔ اس پروگرام میں، اس سفر عشق میں، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کا کوئی خاکہ بھی بیچ میں آ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تشویشناک بات تھی، ایک پریشانی پیدا کرنے والی بات تھی۔ اس پر ادارہ پیمرا جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس نے ایکشن لیا اور اس کا لائسنس 15 دن کے لیے معطل کیا اور کارروائی جاری ہے اس کے خلاف، جیو نیوز کے خلاف۔ اور جیو نیوز والوں نے، جو اس کے ذمہ دار تھے، انہوں نے اس پر معذرت کی اور یہ بھی کہا کہ یہ نادانستہ ہوا ہے، انجانے میں ہوا ہے، یہ وہاں کے رسم و رواج کو دکھایا جا رہا تھا اور یہ ہمارا بنایا ہوا بھی نہیں تھا، اور غیر یعنی احتیاط نہیں کیا گیا۔ اس پر انہوں نے معذرت، اگر انہوں نے یہ معذرت دل سے کی ہے پھر تو صحیح ہے، باقی دل کی بات اللہ جانتا ہے، کیونکہ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا چینل وائرل کرنے کے لیے، اپنا اسٹیشن آگے بڑھانے کے لیے اس قسم کی چیزیں لگا دیتے ہیں اور پھر بعد میں معذرت کر لیتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دل کا معاملہ ہے، دل کا بھید، دل کی بات اللہ جانتا ہے۔ قابل توجہ بات، ضروری بات یہ تھی کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ حرکت میں آ گئے، قانون نے اپنا راستہ لیا۔ جب ادارے حرکت میں آتے ہیں، قانون تو بنا ہوا ہے، قانون تو 1986 میں بنا ہوا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شکل میں بھی کوئی توہین خدا نخواستہ کہیں ہو جائے تو اس کی سزا عمر قید یا قتل ہے، یہ پاکستانی قانون ہے۔ اور پھر 1990 میں غالباً یہ قانون، اس میں تھوڑی ترمیم کر کے اور سخت بنا دیا گیا کہ عمر قید والی بات ہٹا دی، کہاں جہاں اس قسم کی حرکت ہو جائے تو وہاں سزا پھانسی اور سولی پہ چڑھا جائے۔ قانون بننے کے بعد اگر قانون لاگو نہ ہو، قانون بننے کے بعد قانونی ادارے حرکت میں نہ آئے تو پھر اس سے انتشار پھیلتا ہے، خصوصاً مذہبی معاملہ ہو تو پھر امت مسلمہ اس میں حرکت میں آ جاتی ہے اور پھر انتشار اور انارکی پھیل جاتی ہے۔ اور جب قانون اپنا راستہ لیتا ہے، قانونی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں تو پھر ملک، قوم انتشار سے بچ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو تسلی ہو جاتی ہے اور اس میں اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پیمرا والوں نے فوراً ان کا لائسنس ضبط کیا۔ لائسنس ضبط کرنے کے بعد تحقیقات جاری ہیں، اس کے تسلی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہ یاد رہے کہ امت مسلمہ میں ادنا سے ادنا مسلمان، ورنہ ادنا تو ہوتا نہیں ہے، ہر ایک جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تو سارے پکے مسلمان ہیں، لیکن اعمال میں جو کمزور ہو وہ بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہماری ریڈ لائن ہوا کرتی ہے کہ کوئی اللہ کی ذات میں آ کر توہین آمیز جملہ کہے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں اس قسم کی حرکت کرے، ہماری مقدسات کے مقابلے میں کوئی اس قسم کی حرکت کرے، ہمارے شعائر پر حملہ آور ہو، تو یہ ہماری ریڈ لائنز ہوا کرتی ہیں۔ اس کو پار کرنے کوئی مسلمان پار کرنے نہیں دیتا۔ ہمارا اللہ، ہماری اللہ کے ساتھ محبت، ہمارا رسول، ہمارے رسول کے ساتھ محبت، یہ پہلے درجے پر ہے، اس کے بعد ماں باپ اور باقی دنیا کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری محبت اپنے بال بچوں اور دوسری دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے نہ ہو تو تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اور قرآن میں فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تمہارے باپ دادا
वो अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, वो इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, वो अज़वाजुकुम और तुम्हारे जोड़े बीवियां, वो अशीरतुकुम और तुम्हारा कौम कबीला तुम्हारे रिश्तेदार, वो अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और वो माल जो तुमने कमाया है, वो तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो तिजारत जिसके घाटे का तुम्हें खदशा होता है, जिसके घटने का तुम्हें खौफ होता है, वो मसाकिन तरज़ौनहा और वो तुम्हारे बंगले घर कि जिसे तुम पसंद करते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर उनकी मोहब्बत तुम्हें तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे रसूल से ज्यादा हो जाए, और वह जिहादिन फी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से वो ज्यादा हो जाए, मोहब्बत अगर उस दर्जे की हो गई तो फिर फतरब्बसू, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तो फिर तुम इंतजार करो हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह अपना अजाब तुम्हारे ऊपर। वल्लाहु ला युहिब्बु अल-कौम अल-फासिकीन, अल्लाह इस किस्म के फासिक कौम को पसंद नहीं करता। तो हमारी मोहब्बत अल्लाह से सबसे पहले, फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबसे पहले, और उसके बाद दुनिया की सारी चीजें आ जाती हैं। नबी अल्लाह का ये सफीर हुआ करता है, नुमाइंदा हुआ करता है, ये अल्लाह का नुमाइंदा है हमारी तरफ। तो नबी की तौहीन ऐसा ही है जैसा कि उसने अल्लाह की तौहीन की। किसी मुल्क का अगर सफीर कहीं किसी जगह मुतय्यन हो जाए किसी दूसरे मुल्क में, तो वहां उसकी तौहीन उस मुल्क की तौहीन समझी जाती है, उसकी इहानत इस मुल्क की इहानत समझी जाती है, उसकी इज्जत इस मुल्क की इज्जत समझी जाती है। तो ये नबी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबिय्यीन है, सय्यिदुल अंबिया है, तमाम नबियों का सरदार है, लेकिन इससे पहले भी जितने अंबिया आए हैं उनमें से किसी भी नबी की तौहीन ऐसा ही है जैसा कि इस शख्स ने इस नबी की तौहीन नहीं की, बल्कि अल्लाह की तौहीन, अल्लाह के नुमाइंदे की, अल्लाह की तरफ से सफीर की तौहीन। नबी अल्लाह का इंतखाब हुआ करता है। इख्तारनी कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है, मुझे पसंद किया है, मुझे सेलेक्ट किया है नबूवत के लिए। जब अल्लाह का इंतखाब हो और कोई उसमें इस किस्म की हरकत करे, तौहीन आमेज हरकत करे, तो गोया कि अल्लाह के इंतखाब पर उसने बराह रास्त हमला किया। मेरे मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया में जितनी भी चीजें अल्लाह की तरफ से हैं, हमें माल दिया है, जायदादें दी हैं, मुल्क दिया है, इन सब के लिए हिफाजत भी की जाती है, इन सब की हिफाजत भी की जाती है और होनी भी चाहिए। और इस हिफाजत, ये हिफाजत अक्लमंदी और दानिशमंदी भी है। घर है आपका, चार दीवारी बनाई जाती है, ताले लगाए जाते हैं ताकि आपकी गैर मौजूदगी में इसकी हिफाजत हो। माल है, उसकी हिफाजत की जाती है। पहले तिजोरियों में, घरों में रखा जाता था हिफाजत के साथ, और आजकल बैंक के लॉकर्स में रखा जाता है हिफाजत के साथ, ताकि इसकी हिफाजत हो और चोर डाकू उस पर। सबसे बड़ी दौलत हमारी ईमान की है, सबसे बड़ी दौलत हमारी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, सबसे बड़ी दौलत, इन सबसे बड़ी दौलत अल्लाह के साथ हमारे इश्क और मोहब्बत की है। इसकी हिफाजत करना भी उम्मत मुस्लिमा का चूंकि फर्ज होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यह कवानीन भी मौजूद है और इस पर मेहनत हुई है, और इस मेहनत के बाद कवानीन भी बन गए हैं। तो ये हिफाजत है। इस हिफाजत पर अगर किसी ने डाका डालने की कोशिश की, तो जैसा कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी बुनियाद है, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद बगैर कोई मोमिन नहीं कहलाता, लेकिन 1000 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर कोई न माने और कोई न कहे, कोई इसका इकरार न करे, तो वो कभी भी मोमिन नहीं हो सकता। ये हमारी बाउंड्री लाइन है और ये हमारी रेड लाइन है। ये मोहब्बत, ये इश्क अपने अल्लाह के साथ, उस अल्लाह के साथ कि जिसने हमें पैदा किया, उस अल्लाह के साथ कि जो हमारा मालिक है, हमारी हर चीज उसके तसव्वुफ में है, उसके कब्जे में है। जब चाहे मौत दे, जब चाहे जिंदगी दे, जब चाहे बीमारी लाए, जब चाहे बीमारी हटा दे, वो अल्लाह जब चाहे हमसे छीन ले कोई सलाहियत, जब चाहे हमें सलाहियत दे दे। ये हमारे और आपके बस की बातें नहीं हुआ करती, ये अल्लाह के कब्जे में है, वो हमारा मालिक है। वो अल्लाह हमारा राज़िक भी है कि हमारे पलने भरने में जो जरूरियात है वही मुहैया करता है। हमारी आंखें, हमारे कान, सर से लेकर पैर तक सारी नेमतें ये उसी की दी हुई है, और रिज़्क़ पहुंचाना, उसकी तरबियत करना, ये उसी का काम है, और उसी की तरफ हमने सबने लौट कर चले जाना है। उस अल्लाह के साथ मोहब्बत हमारी फितरत में है, और उसके नुमाइंदे के साथ मोहब्बत हमारे रगो पे में दाखिल है। उसके साथ इश्क हमारे
दिल और दिमाग में है। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस इश्क में, इस इश्क के दायरे के अंदर आ। हम मुसलमान तो मुसलमान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में चरिंद परिंद हैवानात और जमादात भी अल्लाह के रसूल के साथ वाकयात भरे पड़े हैं। सहाबा तो इंसान थे, उनका इश्क की तो दास्तानें हैं, लेकिन चरिंद परिंद की भी हैं, हैवानात जमादात की भी हैं। हज्जतुल वदा के मौके पर जब कुर्बानी दी जा रही थी तो वाकया आता है कि 63 ऊंटों को जबह किया। हर ऊंट आगे बढ़ता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि यह सिर्फ मुझे हासिल हो कि मैं नबी के हाथ से जबह हो। एक एक ऊंट बढ़ बढ़ के आगे आता था कि मुझे जबह किया जाए। सहाबा की तो दास्तानें हैं, उनके तो वाकयात हैं, अकल दंग रह जाती है। जंग का मौका होता है, जंग का बाजार गर्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बारिश हो रही है। उस जमाने का असलिहा तीर ही हुआ कर। अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा कि कोई तीर नबी पर न लगे, और फिर ख्याल आया कि अगर मैं चेहरा उन तीरों की तरफ करके सीना तीरों की तरफ करूंगा तो मेरे नबी की तरफ मेरी पीठ हो जाएगी। ये बेअदबी है, बेअदबी भी बर्दाश्त नहीं। इसलिए चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करके यूं अपनी पुष्ट पर तीरों की बरसात हो रही है और तीर पर तीर खाया जा रहा है, लेकिन हुजूर की तरफ तीरों को आने नहीं। सहाबी जख्मी है ग़ज़वे बदर के मौके पर, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को भेज रहे हैं कि जख्मियों को देखो और फलां सहाबी को देखना उसकी क्या हालत है। वो ये सहाबी जाके देख रहा है और वहां देखता है कि ये जख्मों में चूर है और जख्म इसके जिस्म पर है और जिंदगी और मौत की कशमकश में है ये। और जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम अर्ज किया। और तो सहाबी मरते वक्त भी क्या कहता है? आम इंसान तो मरते वक्त अपनी जायदाद की वसीयतें करते हैं, पैसों की वसीयतें करते हैं, औलाद को वसीयत करता है कि फलां जगह मेरी है, कोई बाउंड्री ना हिलाए, मेरे फलां के ऊपर इतना कर्जा है। इस किस्म की वसीयतें होती हैं। लेकिन ये सहाबा, इनकी दास्तान है। वो मरते वक्त भी ये वसीयत करता है कि देखना कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आंच ना आए। हर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाएंगे तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मरते वक्त भी ये कहा जा रहा है। तो ये इश्क और मोहब्बत चरिंद परिंद, इंसान, हैवानात, नबातात, सारी चीजों का अल्लाह के साथ। इंसान तो इंसान है। सहाबा ने तो अपनी जानें दी और अल्लाह के रसूल के खत्म नबूवत पर अपनी जान दी, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस पर अपनी जान दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर अपनी जान कुर्बान। और जहां हमारी मोहब्बत में जरा भी कमी आ जाए तो यूं समझो कि हमारे ईमान में खलल है। माँ बाप कुर्बान हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस पर, बीवी बच्चे कुर्बान हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस पर, बाल बच्चे और माल औलाद कुर्बान हो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत। ऐसे मौकों पर फेसबुक में कुछ दानिश्वर आ जाते हैं दीन सिखाने, कहते हैं यार रवादारी होनी चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। और वो क्या यूरोप से मुतासिर है, वो अंग्रेज से मुतासिर है। और ये याद रखें कि कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि लन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नस्वारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये यहूदी और नसरानी आप जिस तरह की भी हरकतें करें वो आपसे कभी भी राजी नहीं। आप उनकी नकल में उनके फैशन इख्तियार करें, आप उनकी नकल में उनके गुण गाएं, उनकी तारीफें करें, कुछ भी करें, वो कभी भी आपसे राजी नहीं होंगे। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहां तक कि आप या यहूदी हो जाएं या ईसाई हो जाएं, अपना दीन जब तक नहीं छोड़ेंगे तो वो आपके नहीं हो सकते। तो ये दोस्तियां उनके साथ निभाने के लिए, उनकी आशीर्वाद हासिल करने के लिए, उनकी शाबाश लेने के लिए, उनसे मराहत लेने के लिए कुछ दानिश्वर आ जाते हैं और वो हमें दर्श देते हैं कि यहां रवादारी। अच्छा है, अल्लाह भला करे उन इदारों का। हम उनको शाबाश देते हैं कैमरा को कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की। जब कानून हरकत में आता है तो हमें तसल्ली हो जाए। उम्मत मुस्लिमा में इंतशार नहीं आता। उम्मत समझती है कि जो कानून बनाया गया है वो हरकत में आ चुका है, इसलिए कोई इंतशार नहीं होता, कोई फसाद नहीं होता। लेकिन जहां कानून रुक जाता है, हरकत में नहीं आता, तो फिर आम आदमी भी कानून हाथ में लेता है, फिर मुल्क में इंतशार फैलता है। तो यहां जियो न्यूज से जो गलती हुई थी, जो नादानिस्ता या दानिस्ता, उसका हम फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी माजरत भी छापी और बाकायदा तौर पर अपनी माजरत और माफी भी मांगी उम्मत मुस्लिम से, और कैमरा हरकत में आया और उनका लाइसेंस जब्त किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इत्मीनान है, कोई इंतशार नहीं। ये हमारे ईमान की अलामत हुआ करती है कि हम इन रेड लाइंस को पार करने किसी को नहीं देते। लेकिन फर्क कोई भी हो, कानून हाथ में नहीं देते, क्योंकि हमारे इदारे मौजूद हैं, हमारी पुलिस मौजूद है, हमारी अदलिया मौजूद है, इसके खिलाफ कानून मौजूद है।
اس قانون کو لاگو کرنے والے لوگ موجود ہیں. جب وہ حرکت میں آ جاتے ہیں تو ہمیں تسلی ہو جاتی ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے, اور پھر کوئی انتشار ملک میں نہیں. تو میرے محترم بھائی, بزرگ اور دوستو, آج کی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی کہ اللہ کی محبت, نبی کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے, ہماری تمام چیزوں سے, ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہے, ہماری بیوی بچوں سے. جہاں اس ریڈ لائن کوئی کراس کرے تو ہمارا ایمان حرکت میں آ جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں. قوانین جب اپنا راستہ لیتے ہیں تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کی مدد اور نصرت فرمائے جو اللہ اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قوانین کو حرکت میں لاتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. اور اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے جو ہمارے ایمان کو چیلنج کرتے ہیں. اور اللہ ہمارے ملک کی, ہم سب کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.